एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड अपने तमाम करम फरमा मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स को मतला करता है कि एस्थेटिक केयर एक प्राइवेट लिमिटेड इदारा है। इसके ज़ीरे साया 2 रजिस्टर्ड मशहूर ब्रांड्स बनाम केस और सम्स हैं। ये दोनों ब्रांड्स जल्द, बाल और नाखून की निगहदाश्त से मुंसलिक हैं। एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड अपनी कारोबारी पॉलिसी अपने मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट्स के सामने वाज़ेह करता है कि एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड में किसी भी किस्म की सरमाया पॉलिसी या स्कीम नहीं है। एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड में किसी भी शुक्रिया मिन जानिब एस्थेटिक केयर प्राइवेट लिमिटेड। मेरा ख्याल है नज़दीक आके इसको और ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। आप में से कोई अगर दिलचस्पी रखता है तो नज़दीक आके देखें। इनका अच्छा खासा पहले उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा, लेकिन इस वक्त अच्छा खासा नज़र आ रहा है। जी अभी भी है। एक वॉश और है, बेस है वो मेरा ख्याल है निकल गया। आपने कहा था कि सोप इस्तेमाल ना करें तो स्किन के लिए बेहतर नहीं, तो ये जो डव मॉइस्चराइजिंग बार जो आता है वो ठीक है कि नहीं? वो भी सही है, उसमें भी कॉस्टिक सोडा है। जितने सोप बनते हैं उनकी जो प्रोसेसिंग का तरीका है उसमें फैट को सेपनोफाई किया जाता है कास्टिक लई से। जब इंटरेक्शन होता है तो सोप डेवलप होता है। उसके साथ साथ उस फैट की जो सेपनिफिकेशन वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट करके उसी मिकदार से उसको सोप कन्वर्ट किया जाता है। विदाउट पोटेशियम कास्टिक, विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड विदाउट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। अब आपका कहना है कि जी डव एमोलिएंट बार, ये कहा आपने, मॉइस्चराइजिंग बार, और जिस तरह से पियर सोप, अब उसमें एक बाई प्रोडक्ट डेवलप होती है दैट इज कॉल्ड ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जब हम सोप बनाते हैं तो जब दोनों के रिएक्शन से एक प्रोडक्ट निकलती है वो ग्लिसरीन कहलाती है। अगर ग्लिसरीन उसमें छोड़ दी जाए, वो नहीं निकाली जाए, तो वो एक मॉइस्चराइजिंग एडेड क्वालिटी उसकी हो जाएगी। लेकिन मकसद हमारा जो सोप को मना करना है वो स्किन को डिक्रीज करने से, क्योंकि जितना
ایکٹیو ہوگا اس میں کاسٹک، وہ پھر اسکن کو ڈیکریز کرے گا، اور جو نیچرل پروٹیکٹیو لیئر جو ہے سیبم کی وہ اسکن سے ریموو ہو جائے گی۔ اسکن پہ ایک نیچرل پروٹیکٹیو لیئر قدرت کی طرف سے عطا کردہ ہے، اگر وہ رہے تو کافی حد تک اسکن جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے گی۔ جی لگائیے لگائیے۔ گولڈن فیشیل کیا چیز؟ یہ فیل بھی ہوگا، یہ اس کا فارمولا فیل بھی ہوگا۔ دیکھو بیٹا، ایک بات سمجھ لو، میں نے پہلے بھی کہا کہ میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ مس ڈکلریشن، کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، وہ ایک جرم کی مانند ہے، اس لیے کہ کچے ذہن کے اندر یا ایسے لوگ کہ جو لا علمی رکھتے ہیں ان چیزوں سے، وہ ان کو استعمال کر کے پرابلم کا شکار ہوتے ہیں۔ فیس پالش آئی، لوگوں نے بے شمار ہم سے کہا کہ جی فیس پالش، ارے بھائی فیس پالش کا کوئی تصور ہی نہیں ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ فیس پالش کو ایسی چیز تو نہیں کہ آپ نے پینٹ کی طرح سے یا وارنش کی طرح سے آپ لگا دیجئے تو پالش ہو جائے، نو۔ اسی طرح سے گولڈ کی بات ہے، یہ ایک تھوڑے سے عرصے کے بعد ایک ایسی چیزیں جو ذہن کو سائیکولوجی سے افیکٹ کرتی ہیں، وہ چیزیں آتی ہیں اور ان کی ایک شارٹ لائف ہوتی ہے، 2 4 6 مہینے 2 4 سال وہ موجود رہیں گی، پھر اسکن سے فیڈ آؤٹ ہو جائیں گی۔ جہاں تک میری علمیت ہے، گولڈ آج سے پہلے تقریباً 50 سال پہلے 100 سال پہلے وہ استعمال ہوتا تھا آرتھرائٹک میں۔ آرتھرائٹک جو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں، اس سمے اس کے انجیکشنز جو تھے وہ لگا کرتے تھے، اور وہ بھی فیلئر ہو گیا، وہ ٹریٹمنٹ اب نہیں دیا جاتا، اس کے کچھ ایفیکٹ نظر نہیں آئے۔ حکمت میں البتہ اس کے کچھ تجات ہیلتھ پرپزز کے لیے وہ دیے جاتے ہیں، لیکن میٹلک پوائزن اپنی جگہ پر ہے، اور اس سے اگر وہ پروسیس پورا نہ ہو تو اس سے میٹلک پوائزننگ ہوتی ہے، اور اس سے پھر باڈی جو ہے پھول پھال کے کپا بن جاتی ہے اگر وہ کچھ تجات استعمال کیے جائیں۔ تو اب وہ دور اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں گولڈ کی میٹلک سالٹ کو آپ فیشل پرپسز میں استعمال کریں۔ دیٹ ول آواز آ رہی ہے بھائی یہاں پر، گولڈ کو اس جگہ استعمال فیشل میں یوز نہیں کیا جاتا۔ اب اس کا نام اگر آپ رکھ دیں گولڈن فیشل، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ تصور کرنا کہ اس میں گولڈ موجود ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ کہ اس کے اندر گولڈ موجود ہے، میرا خیال ہے تقریباً کچھ 7,000 سے اوپر جا رہا ہے میرا خیال ہے گولڈ، آج کل اور مہنگا ہے، تو تقریباً 8,000 روپے سمجھ لیجیے کتنا گولڈ ہے اس میں اوپر تک۔ اس کا نام ہی صرف گولڈن فیشل ہے، لیکن یہ شروع ہوا تھا دراصل شہناز حسین سے، اور شہناز حسین سے تقریباً 3-4 سال پہلے انہوں نے اس کو ورلڈ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرایا تھا، لیکن بعض اوقات ہم خود ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں
झूठ बोलने में कि खुद ही फंस जाते हैं। स्टेप पहला खत्म हुआ, कोई चेंज आप देखें, पहला चेंज देखिए जी। आप कमेंट्स लीजिए, अफशा कमेंट्स लीजिए, उनको माइक्रोफोन दीजिए ताकि जो रेडिश हो रहे थे वो थोड़े कम हो गए, अच्छा रिजल्ट। जी। जिस तरह क्लीजिंग कर रही है ना, ये इनको आना चाहिए हर महीने, हर 15 दिन। उनको रिमूव करा के अपने आप में कर सकते हैं। यही कुर्सी रख के उनको कम कर दीजिए, उनको रिमूव कराइए, रिमूव करा के यही रखिए, उनको कुर्सी लाइए यहाँ पर, ये चेयर ले लीजिए। हमें लेना नहीं था, थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। चलिए ऐसा करते हैं कि इनको क्या नाम है बेटा आपका? यूसरा। हम 2 मिनट आपसे लेंगे, उनका कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर स्टेप आप लेते हैं। कुर्सी उधर कीजिए। आ जाइए बेटा जी। माइक्रोफोन अफशा, अच्छा ये यहाँ जरा सर दीजिए। ये हम फेशियल करने के बाद जब वो विटामिन सी और 911 यूज़ करते हैं या 901 फेस पॉलिश के लिए आपको, तो कभी किसी क्लाइंट के बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं चेहरे पे, और ये हमारे नेल्स पे भी उसका असर है। जी देखिए, हमने कोई भी प्रोडक्ट फेस पॉलिश के नाम पे नहीं दिया, आपको सिर्फ एक सजेशन दी। जब बहुत ज़्यादा हम पर ये दबाव आया कि इसका कोई प्रोडक्ट दीजिए, तो हमने सीधा सा आपको 2-3 चीज़ें बताई कि इस तरह से ये करेंगे आप तो कुछ एक ग्लोइंग इफेक्ट आ जाएगा। और उसमें ख़ास तौर पे हमने इसी जो ऑरेंज पील हम आज इस्तेमाल करा रहे हैं उसी का ऑयल दिया आपको, कि चूँकि उसमें बीटा कैरोटीन होता है तो उससे आपकी स्किन को ग्लो करने में हेल्प मिलेगी। और उसको ऑक्सीडाइज कराया हमने 10 वॉल्यूम से। लेकिन सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन जो है उसको तो आपने अपने तौर पे चेक करना है, उसी डोजेज को एडजस्ट करना है। बहरहाल चूंकि ये आज इससे मुतालिक नहीं है, आप सवाल कीजिए। सर जो फेशियल मास्क है वो लेट कर लेना चाहिए कि बैठ कर भी सही है? रिंकल जैसा तो नहीं कि बैठ? देखिए, अमूमन ये तमाम सर्विसेज जो होती हैं वो बैठ पे होती हैं, तमाम सर्विस। यहाँ चूंकि आपको दिखाना मकसूद होता है तो उसको मतलब अगर बैठ के लेंगे इस स्टाइल में अगर लेंगे तो उसमें क्या पूरी के बॉडी के मसल्स जो है रिलैक्स नहीं होंगे। इसमें कुछ और भी स्टेप्स होते हैं फेशियल्स के अंदर, जहाँ नर्व सेंटर्स को स्टिमुलेट करने की, मसल्स को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत होती है। ये तो सिर्फ आपको स्टेप्स दिखाने के लिए यहाँ पर फेशियल चेयर के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है। अमूमन ये तमाम जो प्रोसेस होना चाहिए फेशियल बेड पे होना चाहिए, ताकि सर्कुलेशन जो है वो नॉर्म इक्वल लेवल पे हो और उसके साथ साथ बॉडी जो है वो रिलैक्स करे। जितना अच्छा रिलैक्स करेगी बॉडी उतना अच्छा रिजल्ट्स आपके होंगे। ऑयली स्किन के लिए, बहुत ज्यादा ऑयली स्किन हो तब आप उससे धो सकते हैं, और वो भी ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 मरतबा या 2 मरतबा। उनका
کا میں ایکنی فیشیل کرتی ہوں تو خاص طور سے ان کا یہ پارٹ نیچے کا بہت گرم ہو جاتا ہے. اور وہ کہہ رہی تھی کہ صرف فیشیل کرنے سے ہی نہیں, کبھی بعض دفعہ میں بیٹھی رہتی ہوں, بیٹھے بیٹھے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا فیس گرم ہونا شروع ہو گیا. اور ان کو ایکنی سے فائدہ بہت ہوا, اس لیے وہ آ رہی ہیں کروانے کے لیے. اس کے لیے سر میں کیا, ویسے تو میں آئسنگ کر دیتی ہوں, اور وہ جو آپ کا پاؤڈر ہے جو دیا ہے آپ نے 808 ہے وہ میں لگا دیتی ہوں ان کے. تو اس سے کہتی ہیں کہ بہت ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں صرف لپ پورشن میں یہ پورشن گرم ہو جاتا ہے, یہ ان کا گرم ہو جاتا ہے. زیادہ یہاں پر جی, لیکن گرم یہ پورشن ہوتا ہے. میں سمجھ نہیں سکا سر. ڈیڈ وہ بھی گرم ہو جاتا ہے. دس از سم تھنگ unusual. جی جیسے مجھے ہاتھ سے محسوس ہوتی ہے وہ. مے بی یہ بات میرے ذہن میں نہیں آئی تھی. اگر وہ ویکسنگ یا جی تھریڈنگ ویکسنگ کراتی ہیں جی. ہاں تو پھر وہی ریزن. وہ ڈاکٹر اظہر لودھی کے پاس سے وہ لے رہی ہیں, جی مطلب تو پھر لیزر کا بھی ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ایکنی کا تو مجھ سے بیٹا کروا رہی یہ جو ہیں. ہے یہ جی لیزر کا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہوگا نا بیٹا. وہ اگر پیل کر رہی ہیں یا وہ ایسے پروڈکٹ دیے جا رہے ہیں ان کو جو لیزر. لیکن یہ کہ ایکنی سے میرے پروڈکٹ سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے. شکریہ بیٹا. شکریہ بیٹا. آپ کے ٹریٹمنٹ سے بہت فائدہ. وہ تو جو پیلنگ کے لیے یوز کرتا ہے نا کیمیکل, وہ کانسنٹریٹ ونیگر آتا ہے نا جو اچار میں ڈالتے ہیں, 35 روپیز کا ملتا ہے, اس سے کرتا ہے وہ. جی 7000 پر سیٹنگ دیتا ہے. لاسٹ اسٹیپ اس کا جو ٹونر ہے وہ صرف کوکونٹ واٹر کو ہم یوز کریں گے ایز اے ٹونر. اس میں جو خصوصیت ہے اس ٹونر میں, یعنی ٹونر سے میری مراد گرین کوکونٹ واٹر میں, یہ ایک نیچرل سن بلاک کا کام بھی کرتا ہے. ہم ایسے سے نہیں کر پائے ہیں کہ کس ایس پی ایف تک جا کے کرتا ہے, لیکن اس کا اگر ریگولر یوز رہے, بلکہ میں ایک جو ہمارے ایک اپنی کیس ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس پچھلے اس رمضان سے شروع میں ایک بچی آئی تھی, اور ایکسیڈنٹلی اس کا جو فیس ہے وہ چولہے سے کچھ جھلس سا گیا تھا. چونکہ اسکن ڈیمیج ہو چکی تھی, ہم کوئی بھی کیمیکل پروڈکٹ ان کو نہیں دے سکتے تھے. لیکن چونکہ وہ ایک سیلون اونر کی سسٹر تھی, انہوں نے میرے پاس ان کو بھیجا تھا ہیلپ کے لیے. میں نے ان کو کوکونٹ واٹر سجیسٹ کیا تھا, دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ وہ لگاتے رہیں. ان کلاسز کے شروع ہونے سے پہلے ان کا ٹیلی فون میرے پاس آیا تھا کہ ان کی اسکن ٹون جو ہے وہ ایکول ہو گئی ہے, کیا وہ بلیچ یوز کر سکتی ہیں. میں نے کہا ابھی تو جلا ہے, پھر جلا رہی ہو اس کو, تو آپ خدا کے واسطے پہلے اسکن کو ہیل اپ ہونے دو, اچھی طرح سے ہیل اپ ہو جائے تو اس کے بعد پھر یوز کرنا. تو یہ آپ کو صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو برن کیسز ہوتے ہیں ان میں اگر آپ کوکونٹ واٹر یوز کرائیں تو وہ کافی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اسکن کی ٹون کو میچ کرنے کے لیے. تو اس کو کوکونٹ واٹر پلاتے ہیں تو بچہ بہت گورا پیدا ہوتا ہے. That is true, 100% true, and it's an authentic fact. It's written in the book. نتکارنی کی ایک میرا خیال ہے 1780 کی بک میرے پاس ہے, تو اس میں اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ اگر پریگننٹ مدرس کو کوکونٹ واٹر پلایا جائے تو ان کے بچے جو ہیں وہ گورے پیدا ہوں. اور اس کو جب ہم نے ورک آؤٹ کیا, دیکھا, اس کو سمجھا, تو وہی ایک انزائمس کی انہیبیشن کی وجہ سے میلانن پگمنٹیشن جو ہے اس بچے میں کم ہو جاتی ہے, جس سے وہ بچہ گورا پیدا ہوتا ہے. دیٹس ٹرو, 100% ٹرو. آپ لوگوں میں جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے مسز نسیم اختر, بات یہ ہے کہ فریش فروٹ کو مقصد ہی فریش استعمال, یہ ایک دن میں تو آپ کر سکتے ہیں,
उसके बाद इसको यू हैव टू थ्रो इट अवे बिकॉज द कॉस्ट. अभी सुबह मैंने इनको फ़ोन किया कि प्रिपरेशन तैयार है सारी, उन्होंने कह दीजिए कोकोनट नहीं मिला. तो मैं फिर वापस गया, वापस जाके मैंने कोकोनट परचेज किया. 40 रुपीज़ का एक कोकोनट आपको मिलता है. व्हाट इज़ द कॉस्ट सिंपली अगर देखा जाए तो. और वो भी हाँ नहीं, वो बात अपनी जगह है, लेकिन ये कि कराची के रहने वालों के लिए तो इसका हसूल जो है मुख्तलिफ जगहों पर मिलते हैं, आसानी से मिल जाते हैं. स्पेशल की कॉस्ट कितनी रखी? जी स्पेशल की कॉस्ट ये जो बात है ये तो बड़ी छुपाने वाली बात है बेटा. हार्डली जी 40 पाउंड्स स्टर्लिंग पाउंड्स. इसको आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जितने पैसे ले सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ये चूंकि एक तरह की एक सीक्रेट रेसिपीज हैं. ये सीक्रेट रेसिपीज की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है. कॉस्ट चाहे कुछ हो उसकी, लेकिन उसकी आप जो रिजल्ट ले रहे हैं, जो आप रिजल्ट दे रहे हैं उसको, तो वो फिर आपको नेचुरली पे करेगा. This is the final step and the facial is all over now. Thank you very much. आइए यूसरा प्लीज. एक्सक्यूज मी सर, जी ये कोकोनट वाटर जब बच जाएगा फेशियल के बाद तो इसको फ्रिज में रख दें? बेटा आप पीना चाहें तो पी लें, रखना चाहें तो रखें, लेकिन सिर्फ एक दिन तक, बस, इससे ज्यादा नहीं. उससे तो राज खुल जाएगा. वो राज खोलने वाली बात नहीं है. वैसे भी फ्रिज में ख्वाजा साहब कोई भी चीज अगर रखी जाए तो पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरियाज पैदा होते हैं जी जो उनकी एनर्जी और नरिशमेंट्स खा लेते हैं. जी बिल्कुल ये तो सही. ठीक है कि आपको उसकी स्मेल नहीं आती या वो खराब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो फ्रिज वाला चीज जो होती है वो सिर्फ पेट भरने के काम होती जी. है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे तक ये रखें, 4 घंटे जब तक का इनका सलून का टाइम है. उसके बाद हाँ, उसके बाद उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको एक मरतबा रख के 2 महीने के बाद इस्तेमाल कर लिया जाए. नो, इट्स नॉट एडवाइजेबल. इनका पहला स्टेप तो हो चुका है, क्लेंजिंग इनका. अब दूसरा स्टेप इनका बन रहा है मसाज. मसाज के लिए ऑरेंज पील पाउडर हम 303 में मिक्स करेंगे. 1:3 के रेशो में 1 part of orange peel powder, that is natural orange peel powder, and 3 part of 303. It's a moisturizing. हम इसको मॉइस्चराइजिंग क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करवाते हैं जनरली, लेकिन यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे मसाज में. इसमें चूँकि एमोलियंट प्रॉपर्टीज़ हैं अच्छी खासी, और ऑरेंज पील का जो अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो इसके सब्सटेंसेस में जाके डिज़ोल्व होता है, और डिज़ोल्व होके अपनी एक्टिव प्रॉपर्टीज जो है वो सामने लाता है. सो 1 part of orange peel powder and 3 parts of 303, that is PEG compound cream हमारा प्रोडक्ट है. उसको लिटिल ऑफ रोज वाटर के साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप मिला के उसका पेस्ट बना के उससे मसाज. मसाज के लिए ये डेवलप हुई है. इस मसाज को बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से किया जाएगा.
भाई ये तासीर हिकमत का काम है बेटा, कॉस्मेटोलॉजिस्ट का काम नहीं है वो। ये तासीर का जो सेंस है वो सेंस है दरअसल हिकमत का। अगर आप हिकमत के बेसिस पर किसी चीज को लेकर चल रहे हैं तो बात जुदा है, लेकिन यहाँ हम उस एंगल से बात नहीं करते। हमारी अप्रोच मुख्तलिफ है। हम कंपोजिशंस को देखते हैं, उसकी ज़रूरत को देखते हैं। हम उस एंगल से, जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि उसकी तासीर क्या है, यहाँ उस एंगल से हम नहीं मतलब हमारा लिंक नहीं है इस बात से। बहुत ड्राई हो गई, क्या वजह? नॉर्मल स्किन नहीं तो उनके डेड लेयर्स होंगे, रफ ऐसे तो नहीं हुए। डेड लेयर्स जब तक नहीं निकलेंगी उस वक्त तक उनकी कंडीशंस नॉर्मल नहीं होंगी। तो उनके दूसरे फेशियल में तीसरे स्टेप में आप देखिएगा उनकी स्किन स्मूथ हो जाएगी। आजकल अमेरिका में स्किन में है ना, जिसके रिंकल्स होने लगते हैं वहाँ पर ये लोग कोलेजन इंसर्ट करके लगाते हैं मतलब स्किन के अंदर। तो कितना ये सेफ है और ये क्या वाकई इम्प्रूवमेंट होती है? नहीं, इम्प्रूवमेंट होती है उसमें, ये बात और सही है। फैट भी करते हैं, फैट जी हाँ, वो भी करते हैं। वो है, बहुत सही एडवांस कंडीशंस में। देखिए उसकी जो प्रिकॉशंस और एप्लीकेशंस दूसरी तमाम चीज़ें, उसके लिए अभी यहाँ पर अवेयरनेस नहीं। लाइक बुटॉक्स हम दे रहे हैं, बुटॉक्स भी इसी मकसद के लिए दे रहे हैं, कोलेजन भी हम इसी मकसद के लिए देते हैं। लेकिन 100% जो रिजल्ट्स हैं मेरी अभी इतनी रीडिंग उस पर नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन ये जी हमारी 7 लेयर्स होती, तो वो कौन सी लेयर में जाकर ये लोग देते हैं हाइड्रेशन? ये बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल बेस पे जाके देते हैं। अगर किसी लेयर पे आप देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कन्वर्जन होगा उसका केमिकल कंपाउंड का जो ऊपर तक आएगा। मुझे यहाँ से इनकी जो रेडनिंग ऑफ द स्किन थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आई है। आप ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, आप महसूस कर रहे हैं कि इनकी रेडनिंग जो थी वो ख़त्म हो गई। जी जी, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ कोकोनट प्लस जो इसमें ऑरेंज पील की जो अपनी कंपोजिशन है बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। और वही समझ के इस्तेमाल करनी। अब पहले ज़माने में जो उपटन बनाए जाए थे उसमें वहाँ जो फ़र्क आता है अब मतलब एडवांस दौर के हिसाब से, उसमें जैसे उसका जो तिली का तेल वगैरह शामिल किया जाता था या तिली की खल जो शामिल की जाती थी वो बॉडी के लिए तो सही थी लेकिन फेस के लिए नहीं थी। आज के एडवांस दौर में अगर हम उसको असेस करते हैं, अब अगर उसको फेस के हिसाब से बनाया जाए तो वो इस तरह से बनेगा। सिंदूर भी यूज करते हैं, वो क्या सेफ है? सिंदूर जहाँ तक मुझे इल्म है, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो इट्स ए लेड कंपाउंड और इट्स नॉट एडवाइजेबल, या इट्स अ केमिकल, प्योर केमिकल। और कोई मैलब करके कहते हैं, वो मैलब एक माइलम या उसको रोज वाटर के साथ स्किन पे लगाते हैं तो कहते हैं अच्छी हो जाती है। क्या ये ट्रू है? नहीं बेटा, आई डोंट, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका। मसाज के अंदर हमने इसको मिक्स करवाया 303 के साथ ऑरेंज पील को। इसलिए इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो ऑयल सॉल्युबल या सॉल्वेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे ऑरेंज पील के, वो हमने 303 में मिक्स करवाए। अब जो हम इसको स्क्रब के तौर पे पील को इस्तेमाल करेंगे, उसको हम कोकोनट वाटर में करेंगे। वो सब्सटेंसेस के जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो एक्टिव होके अब मज़ीद इसको स्किन को इम्प्रूव करेंगे।
प्लीज ऑब्जर्व कीजिए, जरा देख लीजिए जी। बहुत गोरी और प्यारी लगती है। कैसा आपको कैसा नजर आ रहा है जी? द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि यू कैन गेट दीज रिजल्ट्स विद इन 2 steps or 3 steps. The important thing is that अब वो एक डेली यूज के एप्लीकेशन में हमारे जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए उनका मकसद यही होना चाहिए कि वो एक इंस्टेंट रिजल्ट दें, सो दैट कि वो आपका क्लाइंट जो है वो उससे मुतासिर हो, और मुतासिर हो कि फिर वो आपके पास विजिट पे करे। नाउ वी आर जी मेरा बच्चा, ये सब सेफ प्रोडक्ट्स, और ये आपकी अपनी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर और आपकी अपनी जो नज़र है उसके हिसाब से आप उसका ट्रीटमेंट जो है वो सजेस्ट करें कि उनको 3 दिन के बाद बुला रही हैं, 1 हफ्ते के बाद बुला रही हैं, इस तरह से उनको बुलाएं, बुला के ट्रीटमेंट करते रहें। नाउ वी आर मेकिंग स्क्रब make a very soft and mild scrub by mixing orange peel powder with green coconut water. Adjust the consistency by putting less or more coconut water. ये ऑरेंज, ये इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि अगर आपको ऑरेंज पील पाउडर मिल रहा है तो वो 100% ऑरेंज पील पाउडर हो, और कोकोनट वाटर के लिए हम हेल्प आउट नहीं कर सकते आपको जी। एक्चुअली ख्वाजा साहब मैं यही सवाल करना चाह रही थी, क्योंकि जैसे हम इंटीरियर में होते हैं तो वहाँ ग्रीन कोकोनट का मिलना ज़रा मुश्किल ही होता है जी। तो समटाइम जैसे हम कुकिंग में करते हैं, आई डोंट नो, मैं लग रहा है कि वही सब फनी क्वेश्चन, लेकिन पूछ लेने में हर्ज नहीं है। तो वो हम जो कोकोनट, फ्रेश कोकोनट होता है उसको ग्राइंड करके पानी से उसका मिल्क निकाल लेते हैं फॉर कुकिंग, तो क्या वो भी वर्कआउट कर जाएगा या नहीं करेगा? No. The composition is entirely different. एक बात, दूसरी बात ये कि जैसे इंटीरियर वाली बात आपने कही है, तो उसमें आप उसको ओपन आउट ना करें। आप ग्रीन कोकोनट को अगर 2 महीने तक भी रखेंगे तो उसका पानी जो है वो ड्राई आउट नहीं होता इतना जल्दी, अगर वो बंद है तो आहिस्ता आहिस्ता वो ड्राई होगा। ग्रीन, अच्छा ग्रीन अगर कोकोनट लेके रख लिया जाए तो इट में 2-1.5 महीने आराम से रह सकता है, वो उसको अकॉर्डिंगली यूज किया जाए। थोड़ी डिफरेंट होती है मलेशियन कोकोनट जो है उसकी डिफरेंट होती है, हमने इसलिए यहाँ पर लफ्ज दिया है ग्रीन कोकोनट का। जी सॉरी ख्वाजा साहब, एक्चुअली क्या है कि पता नहीं क्यों लेकिन सब मुझे ही कह रहे हैं कि आप सवालात करें। नहीं जरूर, या मोस्ट वेलकम। अच्छा है, मतलब आप जिस तरह से सवाल देती हैं उस तरह से समझने में भी आसानी होती है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम खुद सुखा लें। किस चीज को? ऑरेंजेस की। हाँ देखें, नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मैंने किया हुआ है, अगर आप धूप में सुखाते हैं तो वो बिल्कुल ड्राई और उनका कलर चेंज हो जाता है और वो बात नहीं ठहरती। छाव में होता है तो उसमें फंगस लग जाता है, तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट एडवाइजेबल कि खुद किया जाए, क्योंकि उसका पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होता है जिसपे उसको सुखाना पड़ता है। सही बात आपने कही है, और उसकी केयर ज्यादा करनी पड़ती है ताकि एक तो फंगस उसमें ना लगे, और फंगस के साथ साथ ये कि एक मखसूस ड्राइनेस पर उसको उठा लिया जाता है ताकि वो ग्राइंड होने में आसानी रहे और उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। नहीं बेटा, वो खुद बनाइए, थोड़ी सी मेहनत भी तो कीजिए ना। हर चीज अगर बनी बनाई आपको मिलने लगी तो फिर तो वैसे एक बात बताओ, वैसे वो जो इसका सीड का जो हिस्सा है उसको ग्राइंड करने का वो सबसे मुश्किल पार्ट है। हाँ, ये उसको जो मैंने तरीका आपको बताया कि पहले उसको क्रश कीजिए। जी हाँ, उसको पहले क्रश कीजिए, क्रश करके ग्राइंड कीजिए, ग्राइंड करके
फिर सीव की ताकि यूनिफॉर्म आपको मिल जाए. हाँ कुछ इसका एक पपीतों की सीड का गाँवों में नुस्खा होता है कि नॉर्मली वो जो खवातीन हुक्का पी रही होती है ना जी वो उसको मतलब क्रश करके ड्राई करके रखती हैं और फिर वो जो क्या कहते हैं कॉइल्स जो होते हैं जी चिलम जो होती है उसमें अंदर डाल के उससे गश लेती हैं. तो उनका कहना होता है कि इससे पेट जो है वो बढ़ता नहीं और पीठ से ही रहता है, मतलब वो बहुत ज्यादा फ्लफी टाइप का पेट नहीं ही निकलता. तो अक्सर जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद उसकी 1-2 गश दिलवाते हैं. तो आइदर ट्रू या ये एक गिमिक है. नहीं, जो एंजाइम्स इसमें मौजूद हैं इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि सुना मैंने है लेकिन तहकीक पे मैंने किया. जी जी और सुना मैंने ज़रूर है क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कौसर कि जो सुनने में तो आती हैं लेकिन उसके लिए तहकीक ज़रूरी है. उसको एट द स्पॉट ये कह देना कि ये सही नहीं है ये गलत है. जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे लिए हर चीज़ हम ये समझते हैं कि मुमकिन है जब तक कि उसके बारे में ये तहकीक ना कर ली जाए कि वो किस हद तक मुमकिन है. मैंने भी की थी मस्ती. अच्छा. लेकिन अब मेरे पास चिलम तो थी नहीं तो मैंने कहा व्हाट टू डू. तो मैंने सिगरेट लिया उसको आधा फोड़ करके उसमें डाल के और 1-2 गश सिगरेट के लगा दिए और सारा दिन इतनी गंदी गैसेस आती रही कि मैं घर वाले भी कह रहे थे खुदा कहाँ से निकल जाओ घर से. हाँ, तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये क्या है तो उसने कहा सिगरेट की फॉर्मेशन और ये जो कॉइल्स होते हैं इनकी फॉर्मेशन अलग होती है इसलिए तुम्हें सिगरेट में नहीं उसी चिलम में ही पीना चाहिए. नहीं उसमें होता यह है कि वो थ्रू वाटर जाता है. स्मोक सिगरेट का जो है वो डायरेक्ट आप इनहेल करते हैं. और उसका जो स्मोक है वो वाटर से प्यूरिफाई होकर जब जाता है तो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे वो पानी में रह जाते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन. अगर वो थ्रू वाटर जाता तो वो शायद प्रॉब्लम नहीं होती. पाँच मिनट टाइम दीजिए. 5 मिनट के बाद चूंकि जो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए वक्त दिया गया और उसके बाद सॉफ्टली स्क्रब करेंगे. प्लानिंग तो बेटा बहुत सारी होती रहती है और बात यह है कि आप सीखने वाले होने चाहिए. हमारी तो तभी चाहती है कि हमारे अंदर जो कुछ है वो आप तक पहुंचा दें और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं. अभी तो कुछ भी नहीं किया आपने. हम इस लिहाज से अगर सोचते हैं अब ये नए साल में इंशाल्लाह कुछ प्रोग्राम है आपको अरोमा थेरेपी पे ले जाने के लिए. अरोमा थेरेपी में जो पोर्शंस हैं इसमें फेशियल्स अरोमा थेरेपी के बॉडी के जो ट्रीटमेंट्स हैं, प्रेगनेंसी में किस तरह का मसाज होगा, टेंशन रिलीफ करने के लिए किस तरह का मसाज होगा, अरोमा थेरेपी बेस किस पे करती है, उसका मकसद क्या है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन सा ऑयल आपने लेना है. एक चीज़ तो नहीं होगी. मिसाल के तौर पर अगर आप हमारी एसेंशियल ऑयल की अरोमा थेरेपी की ऑयल्स की लिस्ट देखें तो उसमें तकरीबन 15-20 के करीब ऑयल्स हैं. हमने अपने तौर पे उसकी वजाहत तो ज़रूर की है लेकिन ये कि उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उसमें उसका कंपोजिशन, सिंगल इंग्रेडिएंट प्लस कंपोजिशन, 3 चीज़ों के कंपोजिशन के मिलने के बाद, 3 ऑयल मिलने के बाद उसका इफेक्ट क्या आएगा, प्लस उसके कैरियर्स, कौन सा कैरियर आपने इस्तेमाल करना है और उसके लिए स्किन कंडीशंस क्या हैं उसको समझना, फिर उसकी क्वांटिटी, फिर उसके फार्मूलाज. बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. अब उसको समेटना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है. ये किस हद तक समेट के उसको
मुख्तसर करके इस लायक किया जाए कि वो आप तक सही तौर पर पहुंच जाए, क्योंकि इसके नाम पर फिर वही बात कहूँगा कि बहुत कुछ किया जा चुका है और हो रहा है, लेकिन अगर तरीके से हो तो ज़्यादा अच्छा है। दिखाइए, थर्ड स्टेप के बाद एक्ने की कंडीशंस क्या हैं, ये आप ज़रा गौर कीजिए। जी नेक भी साफ हुई। Now we'll come to the fourth step. इसमें हम मास्क बनाएंगे ऑरेंज पील पाउडर से विद फुलर सर्द विद ग्रीन कोकोनट वाटर। वन प्लस वन का रेशो रहेगा इसमें, ऑरेंज पील का और फुलर सर्द का, और उसमें एडेड ग्रीन कोकोनट वाटर होगा। अप कंट्री के लिए जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए ये सहूलत है कि वो अपने ऑर्डर बाय पोस्ट भेज सकते हैं। अपने ऑर्डर को असेस करें उस प्राइस लिस्ट के साथ जो आपके पास मौजूद होती है। वो ऑर्डर विद जो अमाउंट जो उसका बनता है वो हमें हेड ऑफिस पर या गुलशन सेल्स ऑफिस पे भेज दीजिए। उसका पैकेट अगर छोटा कोई पैकेट बनता है तो वो थ्रू कोरियर आप तक पहुंच जाएगा। उस कोरियर के कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। अगर बड़ा कोई पैकेट है तो उस सूरत में थ्रू ट्रक्स हम वो सामान भेजते हैं और उसके लिए भी कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। सिर्फ इतना है कि आप ये रिकमेंड करेंगे कि किस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से आपको वो भेजा जाए। वरना यूजुअली हैदराबाद के लिए जो हमारी सर्विसेज हैं वो मामा गुड्स ट्रांसपोर्ट से है। तो मामा गुड्स ट्रांसपोर्ट से वो गाँव में स्टफ आपको भेजा जा सकता है और हैदराबाद से वो पिक किया जा सकता है। छोटे ऑर्डर्स कोरियर से हम भेजते हैं, वो कोरियर के चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। तरीक़ेकार सिर्फ यही है कि जो आपका ऑर्डर है उसको अपने तौर पे उसकी वैल्यू असेस कर लीजिए कि इस अमाउंट का आपका ऑर्डर बना। उस पेमेंट को थ्रू पे ऑर्डर, थ्रू मनी ऑर्डर, थ्रू टीटी, जो भी ज़रिया है वो आप उस ज़रिए से उसका पेमेंट एडवांस भेज दें सो दैट। और ये भी नहीं है कि वो ऑर्डर जो है वो वक्त लेंगे। जिस रोज़ हमें वो रिसीव होता है उसी रोज़ हम उसको डिस्पैच करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है, वरना नेक्स्ट डे वो डिस्पैच हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ये सर्विसेज हैं कि डेली हमारे पास कोरियर का आदमी पहुंचता है और जितने पार्सल्स हैं वो लेके जाता है। फिफ्टीन to 20 मिनट्स इसको टाइम दीजिए। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है इसमें कि ये ड्राई आउट हो जाए, लेकिन 15 से 20 मिनट का इसका टाइम है जो ये इफेक्टिवनेस इसकी जो है वो स्किन पे आ जाएगी। We'll go to the last step of toning. If you have any questions, कोई आपके जहन में सवालात हों इसके बारे में, तो I'm here to help you out.
टेंशन जरा आप देखिए इनकी एक्नी एक्टिव एक्नी किस हद तक सप्रेस हुई. They can do, yeah, no question. इसका एक्टिव पार्ट जो है वो एक्ने के लिए है, लेकिन ये कि अगर कोई वैसे भी करना चाहता है तो they can do it. Definitely. जब हम लोग पहले इसको दूर से देख रहे थे तो रेड स्पॉट वहाँ से नजर आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ करीब आकर नजर आए हैं लाइट पिंक पिंक से कलर के. शुक्रिया. अब इसका लास्ट स्टेप जो है वो टोनिंग है. आप भी देखना चाहती हैं, प्लीज आइए. अब बहैसियत दवा के बहुत हमने, अच्छा रिजल्ट है. थैंक यू वेरी मच. Last step as a toner, we will use coconut water, plain coconut water, green coconut water, और उसी का सॉफ्टली मसाज करके हम इस एक्नी फ्रूट फेशियल का एंड करेंगे. यूसरा के हाउ शी फील्स. Much better. Much better, or how much you feel like improvement in it. You must realize that this is the one application, one facial of our fresh fruit facial. फर्स्ट एप्लीकेशन क्लास से काफी बेहतर है. फर्स्ट एप्लीकेशन के लिहाज से एक सिंगल फेशियल के अंदर यू हैव गॉट दिस मच रिजल्ट. सो आई थिंक दिस इज मिरेकल. अगर एक, और वो भी जहाँ कोई एक्टिव मेडिसिन इस्तेमाल नहीं हो रही है कि जो आपकी एक्ने को सप्रेस करे, जस्ट नेचुरल हर्बल एंड फ्रूट composition. Thank you very much, Yusra, and thank you very much all of you जो यहाँ तशरीफ फरमा हुए. Thank you very much.